Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the chapter 3 of your economics. The name of the chapter is Money and Credit. Students, you all know about money. What is money? You all know. But what is credit? Credit means loan. वी ऑल्सो से दैट दैट क्रेडिट, अगर मैं हिंदी में आपको इसका मीनिंग बताऊँ, इट इज़ उधार. मीन्स समथिंग दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम सम वन टू कंप्लीट आवर नीड्स. समथिंग मीन्स मनी. कुछ मनी और कोई थिंग अगर हम किसी से लेते हैं टू कंप्लीट इट्स आर नीड्स, अपनी नीड्स की, अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट. वो क्रेडिट है. ठीक है. नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव अ डिटेल स्टडीड अबाउट money and credit. Under money we have to be learn that what is money, why we required money, and we also learn about the modern forms of money or currency. Okay. And in the second part of the chapter we will learn about credit. In this we have to learn what is credit, what are the different forms of credit, and what are the terms and conditions of credit if we are taking credit from someone or banks or any other institutions. So the chapter is a detailed studied about the credit. What is the important role of credit, either positive or negative, all that things. Okay, so let's start the chapter. The name of the chapter is money and credit, and in the starting there is a introduction, and under this introduction we have to be learn that why we required or why we have a need of money. What do you think, students? From the starting we are using money? No. In the starting, or we can say when the human being established civilizations, at that time we don't have money. उस समय हमारे पास मनी नहीं थी. We invented money, we are start using money later on. हमने मनी का जो यूज़ है वो लेटर ऑन स्टार्ट किया. तो under the introduction of the chapter we have to be learn that why we start using money. हमने मनी को यूज़ करना क्यों स्टार्ट किया. ठीक है. एज यू ऑल नो दैट इन टुडेज़ लाइफ मनी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आज की लाइफ में मनी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. वी कांट लीव आवर होम विदाउट मनी. हम अपने घर से बाहर बिना पैसे के नहीं निकलते. वाई? बिकॉज वी नो दैट इफ़ वी हैव एनी प्रॉब्लम, अगर हमें कहीं पर भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, दैट मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. दिस वी ऑल्सो लर्न इन आवर चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स अंडर द टॉपिक डेवलपमेंट. बट इन दैट टॉपिक वी ऑल्सो लर्न दैट मनी इज़ नॉट ऑल. मनी सब कुछ नहीं है, but still money plays an important role. Okay, so let's introduction, read the chapter. The use of money span a very large part of our everyday life. use of money spans, money का जो यूज़ है वो बहुत important part है हमारी everyday life का. Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. Can you make a list of these? हम बहुत सारी transactions करते हैं involving money एक दिन में. In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. And under these transactions means लेन देन. And under these transactions, we are using money for getting something or selling something. Services. In some of these transactions, services are being exchanged with money. और कुछ में services exchange होती हैं. For some
there might not be any actual transfer of money taking place now but a promise to pay money later. ठीक है, फॉर सम, कुछ के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि हम अभी मनी नहीं दे रहे बट वी कैन पे इट लेटर ऑन, कि हम ज़रूर देंगे. ठीक है. But here the main thing is that the reason is simple. A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. अब हम यहाँ पर मेनली क्या चीज़ ध्यान कर रहे हैं कि हम मनी को क्यों यूज़ कर रहे हैं. वाई वी आर यूजिंग मनी. तो वी आर यूजिंग मनी बिकॉज मनी इज़ अ वेरी सिंपल वे टू परचेज समथिंग एंड और टू मेक द ट्रांजेक्शन्स ईजी. ठीक है, हमें किसी भी चीज़ की ट्रांजैक्शन को इजी बनाने के लिए मनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो एक नेसेसरी थिंग बन जाता है हमारे लिए. दिस एवरीवन प्रेफर टू रिसीव पेमेंट इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट. हर कोई मनी का यूज़ कर रहा है. बट नाउ कम इन पास्ट में आ जाओ. अगर हम पास्ट की बात करें, व्हेन वी डोंट हैव मनी एट द टाइम व्हाट वी आर डूइंग फॉर ट्रांजैक्शंस. उस समय हम क्या करते थे ट्रांजैक्शंस के लिए. एग्जैक्टली बेटा, एट द इन आर ओल्डर टाइम्स एंड वी कैन से दैट इन आर एनिशियन टाइम पीरियड वी आर यूजिंग गुड्स टू ट्रांजैक्शन फॉर ट्रांजैक्शंस. उस समय हम गुड्स को ही यूज़ करते थे ट्रांजैक्शंस के लिए. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है. टेक द केस ऑफ ए शूज़ मैन्युफैक्चरर. ही वांट्स टू सेल शूज़ इन द मार्केट एंड बाय व्हीट. वो क्या चाहता है? सेल्स शूज़ इन द मार्केट. वो शूज़ बेचना चाहता है और क्या खरीदना चाह रहा है? ही वांट टू बाय व्हीट, और गेहूँ खरीदना चाह रहा है. द शूज़ मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज़ दैट ही वॉज प्रोड्यूस्ड फॉर मनी. शूज़ मैन्युफैक्चर सबसे पहले क्या करेगा? वो गुड्स फर्स्ट एक्सचेंज शूज़. किसको एक्सचेंज करेगा? शूज़ को. दैट प्रोड्यूस, जो उसने बनाए हैं, फॉर मनी. अब वो पहले अपने शूज़ बेचेगा, वहाँ से मनी लेगा और उस मनी से वो अपनी नेसेसरी थिंग्स को बाय करेगा. ठीक है, यही प्रोसेस चलता है. बट यहाँ पर क्या है? दैट ही वॉज प्रोड्यूस फॉर मनी एंड एक्सचेंज द मनी फॉर व्हीट. और उस मनी से क्या खरीदेगा? व्हीट खरीदेगा, क्योंकि एग्जैक्टली उसे क्या बाय करना था? व्हीट बाय करना था. अब वो कह रहा है कि इमेजिन अ सिचुएशन. एक सिचुएशन इमेजिन करो जब हमारे पास मनी ना हो तो क्या होगा. तो जो मैन्युफैक्चर है वो डायरेक्टली शूज़ नहीं बेच सकता. उस कंडीशन में उसको क्या चाहिए? उसको एक ऐसा पर्सन चाहिए दैट रिक्वायर्ड शूज़ एंड हैविंग सरप्लस व्हीट फॉर गिविंग द शूज़ मैन्युफैक्चर. मीन्स कि जिसको किसकी नीड है? शूज़ की. और जिसके पास सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा क्या है? व्हीट, जो वो दे देगा किसको? शूज़ मैन्युफैक्चर को. ठीक है. In this we are not using money, we are using goods, and this system is known as barter system. The system in which we are using goods for exchanging or transaction is called barter system. I am repeating, the system in which we are using goods for transaction is known as barter system. Definition is not given here, that's why I am repeating again. Okay, now under the barter system there was a condition. The condition is known as double coincidence of wants. Now what is double coincidence of wants? Just see, in the last example I told you that the shoes manufacturer now search a person that need shoes and have surplus wheat. दो रिक्वायरमेंट्स हो गई ना. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स.
कि जिसको शूज़ चाहिए और जिसके पास वीट हो, तभी वो उस पर्सन को अपने शूज़ सेल करेगा और उससे वीट परचेज करेगा. तो इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू फाइंड दैट पर्सन. ठीक है, हमें पहले वो पर्सन फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, तो टू मेक इट ईजी ट्रांजेक्शन, टू मेक दिस ट्रांजेक्शन ईजी, इस ट्रांजेक्शन को ईजी बनाने के लिए what we need money, and that's why human being discovered money. इसलिए उसने मनी को डिस्कवर किया कि नहीं, हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हमें ये एक मीडियोकर चाहिए, एक मीडियम चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी ट्रांजैक्शंस को ईजी बना सकें. एंड दिस इज़ केम इन द फॉर्म ऑफ मनी. वो मनी के रूप में हमने यूज़ करनी स्टार्ट की. नाउ मनी, human being is using money from the ancient time period. If we learn about the ancient time period, Indus Valley civilizations को भी अगर हम रीड करते हैं तो उस समय भी सील्स होती थी, वो मनी का ही एक फॉर्म होती थी. चलिए लेट्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को हम अभी लर्न करेंगे. तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या था? दैट इज़ नीड टू थिंग्स, कि जो मुझे चाहिए, तो मुझे सामने एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसको मेरी वाले गुड्स की आवश्यकता हो और जो मुझे चाहिए वो उसके पास हो. ठीक है, सो दिस इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. व्हाट अ पर्सन डिज़ायर टू सेल इज़ एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय. व्हाट अ पर्सन डिज़ायर टू सेल इज़ एग्जैक्टली व्हाट द अदर विश टू buy. This is double coincidence of wants. In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money. यहाँ पर बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि गुड्स एक्सचेंज होते हैं विदाउट द यूजिंग मनी, जिसमें हमें क्या चाहिए होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. ये एक एसेंशियल फीचर है इसका. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज in contrast, in any economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate steps eliminates the need for double coincidence of wants. यही बताया मैंने आपको कि मनी क्या करता है, वो ये जो स्टेप है हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, उसको रिमूव कर देता है, जो कि बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है. It is no longer necessary for those manufacturer to look a farmer who will buy his shoes and at the same time sell him wheat. ठीक है, तो उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है वो ख़त्म हो जाता है. सो वी आर स्टार्टिंग यूजिंग मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हमने मनी का यूज़ करना स्टार्ट किया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, तो in the last introduction we learn the importance of money. हमने इम्पोर्टेंस लर्न की मनी की, कि बिना मनी के ट्रांजेक्शन्स जो है दैट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट. एंड टू रिमूव द प्रॉब्लम्स इन ट्रांजेक्शन्स वी स्टार्ट यूजिंग मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ओके, सो नाउ कम द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ modern forms of money. Under this topic we have to be learn that nowadays in the modern society which forms of money we are using. What do you think? Just imagine, आप just think about कि हम कौन सी forms of money use कर रहे हैं. अगर हम आज के क्राइटेरिया में जाएं तो we are using lot of form of money. we are not using direct cash payment, हम नहीं कर रहे हैं. we are using lot of other methods, like we are using Paytm, we are using Google Pay, and also using checks, drafts, many other things. हम बहुत सारी चीज़ें विदाउट कैश पेमेंट यूज़ करते हैं. बहुत सारे तो मॉडर्न सोसाइटी में बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं, बहुत सारा पार्ट ऑफ सोसाइटी ऐसा भी है जो कि दैट दे आर सेइंग दैट आई एम नॉट हैविंग द कैश मनी विद मी. मैं अपने पास कैश मनी रखता ही नहीं. वाई? बिकॉज दे आर यूजिंग
व्हाट दे आर यूजिंग मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ पेमेंट, जिसमें वो इंटरनेट का यूज़ कर कर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ पेमेंट को यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं, समथिंग एल्स. ओके, तो दिस इज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. नाउ वी हैव टू बी लर्न दैट under modern forms of money what we are using exactly or at a large scale. ठीक है, as I told you that use of money is not the new thing. We are using from the ancient time period, and in the ancient time period during Indus Valley civilization we are using seals at that time. हमारे पास उस समय सील्स होते थे, ये देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है. अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन्स में भी 2500 ईयर्स ओल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे. अगर आपको हिस्ट्री याद हो तो हमने पढ़े हुए हैं, जिसमें वो एक ये जैसे इसमें दिखा रखा है कि एक पिक्चर बनी होती थी और उसको पंच कर दिया जाता था और वो उसको यूज़ किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ मनी. ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स जो हम स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे हैं मनी की, बट नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. ओके, चलिए, वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शन. Before the introduction of coins, a variety of object was used as money. For example, since a very early age, Indians used grains and cattle as money. Thereafter came the use of metallic coins. Starting में कौन से coins होते थे? Gold, silver, copper coins. जो कि मनी itself a money. गोल्ड का प्राइस तो गोल्ड का ही है, वो चाहे पैसे ना भी हों तो भी वो गोल्ड की फॉर्म में बिकेंगे. ठीक है ना, तो इस तरह के कॉइन्स होते थे पहले, बट लेटर ऑन हमने पेपर करेंसी यूज़ करनी स्टार्ट कर दी. ठीक है, नाउ कम ऑन करेंसी. करेंसी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूडेड करेंसी. जो हमारी मॉडर्न फॉर्म है वो करेंसी है, जिसमें हम पेपर नोट्स एंड कॉइन्स को ऐड करते हैं. करेंसी, एज यू ऑल नो दैट एवरी कंट्री हैव इट्स ओन करेंसी. हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है, उसका अलग नेम है, उसका अलग शेप है, अलग क्राइटेरिया है. ठीक है, चलिए, तो पेपर नोट्स हम यूज़ कर रहे हैं. वाई वी आर सीइंग पेपर नोट्स एक करेंसी. कब तक एक करेंसी है? जब तक इट वॉज अथॉराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री. जब तक वो उस कंट्री की गवर्नमेंट द्वारा अथॉराइज्ड है. अगर वो गवर्नमेंट अथॉराइज नहीं करती देन इट इज़ जस्ट अ पेपर, नॉट अ करेंसी. जैसे कि आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 1000 और 500 के नोट्स को चेंज किया था और 1000 के नोट्स बंद किए थे, उस समय क्या था कि विद इन सम डेज वी हैव टू बी एक्सचेंज द मनी. हमने वो सारे नोट्स चेंज किए. बट अगर बाय चांस किसी के पास वो पुराने नोट्स रह गए तो वो क्या है आज की डेट में? इज देयर दैट इज़ अ करेंसी? नो, दैट आर नॉट अ करेंसी टुडे इन आवर कंट्री. दे आर जस्ट अ पीस ऑफ पेपर बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दैम फॉर एक्सचेंजिंग और ट्रांजेक्शन और परचेजिंग गुड्स. हम गुड्स को परचेज करने के लिए उस करेंसी का यूज़ नहीं कर सकते. तो अथॉराइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर अ करेंसी. जब तक गवर्नमेंट उसको अथॉराइज नहीं कर रही है तब तक वो करेंसी नहीं है. चलिए, तो न्यू फॉर्म्स ऑफ करेंसी क्या है? पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. अनलाइक द थिंग्स दैट वी आर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल, gold, silver and copper, and unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own. ये अपना कोई यूज़ नहीं है इसका. just a piece of paper after neglected by the government. ठीक है, चलिए, देन वाई इज़ इट एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. फिर हम इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं जब इसके कोई वैल्यू ही नहीं है? पेपर है एक सिंपल, बट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट इज़ अथॉराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द
कंट्री, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट ने अथॉराइज्ड किया है। ठीक है, चलिए नाउ कम ऑन इंडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में कौन करता है करेंसी? मैं आपको बता दूं, इन आर कंट्री करेंसी से रिलेटेड सभी मैटर्स को जो हैंडल है वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। करेंसी इशू करता है, करेंसी को न्यू करेंसी अगर प्रिंट करवानी है तो वो भी काम रिज़र्व बैंक का है। बट ये सब जो वर्क हैं वो रिज़र्व बैंक अकेला नहीं करता। अगर नई करेंसी निकालनी है, नए नोट्स छपवाने हैं, तो इसके लिए उसको वर्ल्ड बैंक के साथ कांटेक्ट में रहना पड़ता है, और उसके कंपैरेटिवली गोल्ड की ट्रांजैक्शन होती है। ये इकॉनमी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। बस मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बता रही हूँ कि रिज़र्व बैंक अपनी इच्छा से पेपर नहीं छापता, इसके लिए भी उसको एक फुल क्राइटेरिया जो है वो यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो but all these matters related to currency are handled by Reserve Bank of India in our country. As per Indian law, no other individual or bank organization is allowed to issue currency. Indian law के according रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा और किसी ऑर्गेनाइजेशन को करेंसी के रिगार्डिंग इश्यूज़ को डील करना अलाउड नहीं है। Moreover, the law legalized the use of rupees as a medium of payment that cannot be refused in setting transaction in India. लॉ भी जो लॉ हमने बनाया है वो भी रिजर्व बैंक ही लॉ बनाता है यूज़ ऑफ मनी के रिगार्डिंग। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। इंडिया में कोई भी पर्सन पेमेंट को रुपीज़ में लेने से मना नहीं कर सकता, बिकॉज रुपीज़ इज़ अथोराइज बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अगर हम कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो हमें इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ हम देंगे या लेंगे, हम मना नहीं कर सकते। अगर कोई कहे कि नहीं, हम कहें कि नहीं हमें तो पैसे नहीं चाहिए, हमें तो गोल्ड ही चाहिए, हमें तो सिल्वर ही चाहिए, नो, हम ऐसा किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, किसी के पास मनी नहीं है, वो अपनी इच्छा से ये कह सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मनी नहीं है, आप मेरे जो मैंने थिंग ली है उसके प्लेस में ये गोल्ड रख लीजिए, तो वी कैन डू इट, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते द यूज़ ऑफ रुपी। ठीक है, चलिए, हैंस द रुपीज़ इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इस तरह से रुपीज़ जो हैं वो एक वाइडली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है इन आर कंट्री। ओके, चलिए, नाउ डिपॉजिट्स विद बैंक, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बट इट इज़ द लॉन्ग वन, सो वी डिस्कस इट टुमारो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।